and this is a bond formed between hydrogen and the most electronegative element. Strongest hydrogen bond is that of फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन. मैंने बॉन्ड कहा, बॉन्डिंग नहीं कहा. स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड आई शुड से, इज ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन. And HF remain linear during the formation of hydrogen bond. And this is bond angle similar to the bond angle of trigonal planar geometry, that is 120. So strongest hydrogen bond is with fluorine, then is with oxygen, and then is with nitrogen. Condition for the formation of hydrogen bond. As I said, hydrogen bond is a type of polar covalent bond, but is a weak bond whose energy range from 1 to 10 kilocalories or 4 to 40 kilojoule is 1/10th stable than covalent bond. मतलब covalent bond is 10 times more stable than hydrogen bond. So the covalent bond energy ranges around 400 kilojoule. तो 40 इसकी है तो 10 times stronger हुआ covalent bond इससे. Condition for the formation of covalent bond is, number 1, the electronegativity of the atom should be very high. And among the most electronegative element, we take fluorine, oxygen, nitrogen and chlorine. So the first condition is that electronegativity should be very high. The second condition, the size of the electronegative atom should be small. Size of electronegative atom should be small. यस और नो. और इस कंडीशन के आते ही Cl बाहर हो गया. Fluorine is more electronegative than oxygen, who is more electronegative than nitrogen. It means Cl with H can have the polar covalent bond, but Cl with H is not a hydrogen bond. Hydrogen bond is of hydrogen with phone, fluorine, oxygen, nitrogen, and this phone is the decreasing order of hydrogen bond strength. Decreasing order of hydrogen bond strength. Bond बोला, bonding नहीं बोला. Is it okay? अब हमने देखा कि वाटर है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं. अगर आपके पास वाटर है, दैट वाटर हैविंग H पॉजिटिव with partial positive charge and O with partial negative charge. तो अगर पार्शियल पॉजिटिव यहां है, पार्शियल पॉजिटिव यहां है, दो पार्शियल पॉजिटिव हो गए. इट मीन्स दिस water, this oxygen having
partial to negative. This is partial positive. This is partial positive. This is partial to negative. This is partial to negative. This is partial positive, partial positive. But we don't write it exactly to negative. We write it partial negative and partial negative. तो partial negative है तो वो 2 ही negative. So this is the 3D representation. So you can see from here that this is water with 2 partial positive charges and 2 partial negative charges. It is clearly mentioned in your NCERT that hydrogen bond is through the electronegative atom and through the lone pair of the central atom. It means if we see the electronegative atom, there is oxygen, so oxygen through hydrogen, this 3D, 2D is shown over here. ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये देखो ऑक्सीजन के साथ हो गया, और जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर के थ्रू वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया. क्वेश्चन आ चुका है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाटर इन वाटर इज 4, मीन्स सिंगल वाटर इज सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल्स. Is it okay? It means hydrogen bonding is strongest in water. Bonding is strongest in water, but bond is strong in HF. So water shows strong association due to hydrogen bonding. Thus strongest hydrogen bond or strong hydrogen bond is present in water. अगली बात हमने देखी तो अमोनिया एक ऐसा है जो वैसे पिरामिडल होता है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान ये इस तरह से हो जाता है जिससे इसकी पैकिंग सॉलिड फॉर्म में बेहतरीन होती है. इसलिए इस वजह से सॉलिड फॉर्म में अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा हो जाता है. हम आगे उनके डिफरेंट वेरिएशंस ऑर्डर कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं. आप देख लें कि कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ 2 टाइप एंड बी अटेंटिव नाउ. One is intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding. हम अभी इसी को डिस्कस कर रहे हैं. हम यहां लिखेंगे व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. आपने 2 तरह के मैथ सुने अपने स्कूल में. एक मैथ था इंट्रा स्कूल और एक था इंटर स्कूल. उसी तरह से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 टाइप है. वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर एंड वन इज इंटरमॉलिक्यूलर. इंटरमॉलिक्यूलर मींस इंटर स्कूल. इंटर स्कूल मैच में कितने स्कूल होते थे? कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा पता नहीं. बट इंट्रा स्कूल में एक ही स्कूल होता था. क्लासेस डिफरेंट हो सकती थी या क्लासेस भी सेम हो सकती थी. सेक्शन ए सेक्शन बी के बीच में मैच. और आपने देखा उस मैच को हम कहते थे इंट्रा स्कूल इज ऑफ 2 टाइप. Either it is intra class or it is inter class. इनमें से आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे अगर वो मैच इंट्रा क्लास हो, क्योंकि वो तो आपकी क्लास के बीच का मैच है.
थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेते थे अगर वो मैच इंटर क्लास हो, पर जब वो इंटर स्कूल होता था ना, का मतलब हुआ intermolecular hydrogen bonding involves large number of molecules. Large means inter-school competition is competition between so many schools. So we having one is intramolecular and the another is intermolecular. Intermolecular. So intermolecular hydrogen bonding involves so many molecules, as inter-school match involves so many schools. So we are taking first intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular. When the hydrogen bond is present within the same molecule. When the hydrogen bond is present within the same molecule, then it is called intramolecular hydrogen bonding. And then see here, we did, and this mainly happen in the organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन होती है उसका नाम है ऑर्थो पोजीशन. ऑर्थो इज 1-2 पोजीशन. अगर आपके पास यहां OH है तो आप मुझे बताएंगे कि उस O की हाइब्रिडाइजेशन क्या है. उस O की हाइब्रिडाइजेशन वही है जो कार्बन की है, मतलब sp2. और यहां 2 लोन पेयर नहीं है, एक ही है, क्योंकि एक तो रेजोनेंस में है. इस वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, एटॉमिक ऑर्बिटल 2 और एक लोन पेयर, इसलिए वो बॉन्ड ऐसा टेढ़ा है. हम बात करते हैं नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल. ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इस तरह का and this is what we are saying is the hydrogen bond. इधर हमारे पास क्या था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. यहां क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. यहां अगर आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मुंडी को काट दोगे तो फॉर्मल चार्ज आ जाएंगे, और वो फॉर्मल चार्ज O के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव. N के ऊपर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव. दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रिंग फॉर्मेशन, और दिस इज कॉल्ड chelation if it is chemistry. This is called chelation, or the people they also call it chelation, but chelation is preferred term as it is being taken from the chillet. बायो में पढ़ा होगा आपने. एक होती है कोई चीज, आप उंगली उसके नजदीक ले जाओ और आपकी उंगली को बहुत प्यार करती है. क्रैब देखा है. और जब वो आपकी उंगली को अटैक करता है तो वहां एक साइकिल बनती है. दैट इज, इसलिए उसको हम बोलते हैं चिलेट. सो दिस इज साइक्लाइजेशन एंड दिस इज कॉल्ड चीलेशन. इसका मतलब हुआ ये चीलेशन सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे ही हो सकती है. अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या क्या कंडीशन है, आप थोड़ा ध्यान से सुन लें. कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, जो हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो वो किसी से खुद भी पहले हाइड्रोजन बॉन्डेड हो. कुछ समझ में आई बात? अगर आप
इस OH के बजाय NO2 को तो NO2 ही रहने देते, बट इस OH के बजाय वहां CH3 लिख देते, तो हाइड्रोजन तो है वहां, पर क्या उस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है? कार्बन इज नॉट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इट मीन्स द वन हु इज हाइड्रोजन बॉन्डेड कैन ओनली शो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आप नहीं बोलोगे कि सर ये ऑर्थो नाइट्रोटॉल्वीन है, इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. द आंसर इज नो. दैट इज पहली कंडीशन है कि जो हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉन्डेड है, वो हाइड्रोजन किसी से पहले खुद हाइड्रोजन बॉन्डेड होनी चाहिए. उसका जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होना चाहिए, ताकि वहां पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो. हो गई पहली कंडीशन. कंडीशन नंबर 2. कंडीशन नंबर 2 कहती है कि जब वो किसी ऑर्गेनिक बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर हो, तो चिलेशन इफेक्टिव तभी मानी जाएगी अगर वो चिलेशन के दौरान 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बनाए. दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक बेयर स्ट्रेन थ्योरी, कि अगर साइकिल 5 या 6 मेंबर्ड से ज्यादा होती है या कम होती है, वहां स्ट्रेन होती है. इसलिए हमने क्या कहा कि 5 to 6 मेंबर्ड रिंग. क्लियर हो गया? 5 to 6 मेंबर्ड रिंग वो बननी चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अगली बात, जब वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, मतलब वो ऑर्थो पोजीशन की हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जिस एटम के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, इस टाइम किसके साथ बनाया है? O के साथ. वो खुद किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा होना चाहिए. क्यों? तो फिर वो क्यों ना बनाए? अगर यहां N होता, यहां O होता, तो फिर O से बनाए ना हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हमने अगली कंडीशन लिखी, द one who is forming hydrogen bond should not be itself attached to the more electronegative atom. अब आपने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा. सो हमने कह दिया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, is not a very strong hydrogen bonding. अब हमने बात की कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि भाई इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने जा रहा हूं. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए इंट्रा की बात मैं पहले कर चुका कि इंट्रा अगर कहीं हो सकती है, दैट वेरी क्लोजेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन. ठीक है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हुआ कि आपने जिस भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द OH of next para-nitrophenol, which will be further bonded. So we are saying that this will involve so many molecules in association
means thereby intermolecular hydrogen bonding is strong than intramolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding involves more association, means thereby ortho nitrophenol, inter or intra? Intra. Ortho nitrophenol will have weaker hydrogen bonding than para nitrophenol. So para nitrophenol will have boiling point greater than orthonitrophenol. तो हमने इन दोनों बातों से पता कर दिया कि व्हाट वी मीन बाय इंटर एंड इंट्रा. अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पहले कर रहे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे क्या हुआ. बात नंबर 1, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग leads to acid weakening effect. Weakening effect मतलब यहां से साफ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ भी अफेक्ट हो सकती है. So that leads to acid weakening effect. How? Let us see. We having orthonitrophenol. We just did where the hydrogen, कौन सी हाइड्रोजन? The acidic hydrogen, the active hydrogen is involved in intramolecular hydrogen bonding, which make orthonitrophenol weaker acid, that is its Ka is less than acid dissociation constant of para nitrophenol. So we should say Ka of orthonitrophenol is smaller than Ka of para nitrophenol. हमने कह दिया, और Ka का उल्टा क्या होता है? pKa. सो हमने कह दिया pKa ऑफ orthonitrophenol is greater than pKa of para nitrophenol. Ka का उल्टा pKa. Why? Because pKa is minus log of Ka. pKa is minus log of Ka. Is it okay? इसी अभी हमने बात किया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर. सो आई शुड से
I should say boiling point of para-nitrophenol is greater than ortho-nitrophenol. Boiling point of para-nitrophenol is greater than ortho-nitrophenol. कर दिया उसने एसिड को वीक. क्या ये यहां ही है या कहीं और भी है? हमने लिखा ऑर्थोफ्लोरोफिनोल. ऑर्थोफ्लोरोफिनोल. फ्लोरीन इज दिस. अगर ये फ्लोरीन है तो इस फ्लोरीन और H के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड. ये क्या है? चिलेशन. Which clearly mean that this will be, who among the two will be stronger acid? Yes. Should I say Ka of this is more? Because the hydrogen is involved in intramolecular hydrogen bonding. पहली बात आ गई कि Ka of this is greater than Ka of this. अभी बात की कि पैरा वाला शो करेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ऑर्थो वाला शो करेगा इंटरा. मीन्स इंटरा इज वीकर देन इंटर. इज इट ओके? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डू अफेक्ट द फिजिकल स्टेट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर इज वीक. दिस इज लिक्विड. और आई शुड से this will have boiling point greater than this because para फ्लोरोफिनोल. सेम चीज यहां बात कर रहा हूं. we having ortho hydroxy benzaldehyde. ortho hydroxy benzaldehyde. Aldehyde is CHO group. What is hybridization of carbon is sp2. It means this is chelation. Is it okay? If it is para-hydroxy benzaldehyde, then this is this. Who will have the stronger hydrogen bonding? Who will have the strong Ka value? I should say para-hydroxy benzaldehyde will be more acidic than ortho-hydroxy benzaldehyde because hydrogen, acidic hydrogen is involved in intramolecular hydrogen bonding. As I said earlier, hydrogen bonding affect the physical state. This is a question given in your book. Ortho-hydroxy benzaldehyde is liquid, but para-hydroxy benzaldehyde is high melting solid. Ortho-hydroxy benzaldehyde is liquid, but para-hydroxy benzaldehyde is high melting solid. The difference is that hydrogen bonding is strong in para-hydroxy benzaldehyde as it is
intermolecular hydrogen bonding, and it is weaker in orthohydroxybenzaldehyde as it is involving only single molecule, intramolecular. Is it okay? If we see the next point, that is hydrogen bonding may lead to acid strengthening effect. अभी कौन सा इफेक्ट हुआ था? Acid weakening. You will write a note over here. If the acidic hydrogen is involved in hydrogen bonding, it produces acid weakening effect. However, if the hydrogen bonding is present in the conjugate base, that produce acid strengthening effect as follow. Ortho hydroxy benzoic acid, which is commonly called salicylic acid, is exceptionally stronger acid than benzoic acid. Why? Let us see why this is there, why this exceptional behavior is there. So when we having orthohydroxybenzoic acid, we having this और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. Organic compounds are not strong acids, so it's in dilemma. क्या मैं H positive दूं? We all know that COH having more acidic hydrogen than OH. It means when जब वो अपना एक H पॉजिटिव दे देगा तो वहां नेगेटिव बन जाएगा. एंड वी नो देयर इज वन लोन पेयर, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, सो वी नो देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, and due to this there is formation of chelation, artificial ring formation. And what this we used to call is conjugate base. We know about the theory, Lowry-Bronsted theory of acid and base, according to which Lowry and Bronsted said acids are H positive donor, bases are H positive acceptor. इसने आगे जाते हुए H पॉजिटिव दिया. क्या H पॉजिटिव देने से इसको फायदा हुआ? मुझे कोई कहे कि ये H पॉजिटिव है, इसको दे दे और सो जा, मैं फटाफट दे दूंगा. बिकॉज आई एम एट हायर एनर्जी स्टेट एंड सोना इज low energy state, so I will be moving from less stability to more stability, so I should give this H positive. जब मुझे इस H positive को देने से stability मिल रही है तो क्या मैं इस H positive को वापस लूं? No.
means thereby conjugate base is stabilized by intramolecular hydrogen bonding and conjugate base stability is directly proportional to acidic strength and inversely proportional to conjugate base strength. क्लियर हो गया? इसका मतलब हुआ कि ये H पॉजिटिव देना तो ठीक समझता है पर लेना ठीक नहीं समझ रहा है. इसका मतलब इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस वजह से हुई? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जिससे हाइड्रोजन कहां जिससे कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? स्टेबल हो गया. इसलिए उसने उस H पॉजिटिव को जल्दी दे दिया. यही चीज या बेंजोइक एसिड होता या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता तो उसके अंदर चिलेशन ना होती. इस आयन को कहते हैं सैलिसाइलेट आयन. इसका मतलब हुआ सैलिसाइलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग which increases the conjugate base stability, which shifted the equilibrium in forward direction and made salicylic acid exceptionally strong acid. Is it okay? अब हमने क्या कहा कि अगर वो एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो एसिड क्या हो गया? वीक. अगर कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हो गया स्ट्रांग. आई एम टेकिंग सिंगल एग्जांपल ऑफ मैलिक एसिड व्हिच वी यूज्ड टू कॉल एज मैलीस एसिड. मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि ये सिस फॉर्म है. मैलिक एसिड अलग होता है. मैं बात कर रहा हूं मैलिक एसिड की. मैं बात बोल रहा हूं मैलिक एसिड की. मैलिक एसिड का दूसरा आइसोमर है फ्यूमेरिक एसिड, जिसमें COOH एक दूसरे से अपोजिट साइड में है. तो पूछा गया प्रूव Ka1 of this is greater than Ka1 of this, but Ka2 of this is less than Ka2 of this. Ka A मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, 1 मतलब पहली हाइड्रोजन निकलना. आप निकालिए इसमें से पहली हाइड्रोजन. जब आपने इसमें से पहली हाइड्रोजन निकाली तो आपके पास क्या बना? इज हियर. आपके पास बन गया ये. आपके पास बन गया ऐसा. ये कौन सा बॉन्ड हो गया जी? हाइड्रोजन बॉन्ड. ये क्या हो गई जी? चीलेशन. इसका मतलब पहला हाइड्रोजन जैसा ही निकला वहां चिलेशन हो गई. तो क्या पहले हाइड्रोजन को जल्दी निकलना चाहिए या पहले हाइड्रोजन को लेट निकलना चाहिए? क्या इसके हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन जहां से मर्जी निकालो, को निकालने के बाद वहां चिलेशन हो सकती है? नहीं, क्योंकि COH तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइड में है. Am I right? अब मुझे बताओ पहला हाइड्रोजन कौन जल्दी दे? मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड? किसको पहला हाइड्रोजन देने से स्टेबिलिटी मिली?
मैलिक एसिड को, इट मींस Ka1 पहला हाइड्रोजन मैलिक एसिड जल्दी देगा। अब आप ध्यान दो कि अगर दूसरा हाइड्रोजन निकालना होगा तो बताओ कौन जल्दी निकाले? क्या ये जल्दी निकाले या ये जल्दी निकाले? अगर आप दूसरे हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो शायद यहां मुश्किल होगा, क्योंकि दैट इज इन्वॉल्व इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पे वो इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन शुड आई से सेकेंड हाइड्रोजन फ्यूमेरिक एसिड का जल्दी लगा। इसका मतलब इस एक एग्जाम्पल के अंदर हमने दो कंसेप्ट इकट्ठे कर दिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एसिड को वीक कर सकती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एसिड को स्ट्रांग कर सकती है। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व है कौन? एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिड को वीक कर देगी, और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग H पॉजिटिव देने के बाद आ रही है तो वो उस एसिड को स्ट्रांग करेगी। सो दिस वाज क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड हमने बड़ी सहजता से उसका आंसर कर लिया कि देखिए मैलिक एसिड पहला हाइड्रोजन देने के बाद कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए पहला हाइड्रोजन उसका जल्दी निकला। दूसरा हाइड्रोजन इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि वो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व था, पर क्या यहां इन्वॉल्व था? नहीं। इसलिए हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अभी हम जितना भी सामने कर रहे हैं हमारा फोकस इंटर और इंट्रा पे है। सो दिस इज हाउ वी said that hydrogen bonding can affect physical state. Hydrogen bonding can affect acidic strength. Hydrogen bonding can affect physical properties. किसी का boiling point ज़्यादा है, किसी का melting point ज़्यादा है, इसलिए हमने कहा orthohydroxy benzaldehyde should be weaker acid than para-hydroxy benzaldehyde. Yes or no? On the basis of the same, we said that orthonitrophenol is with lower Ka value than para-nitrophenol. That its hydrogen is involved in hydrogen bonding. The same as is given to you is orthofluorophenol. The hydrogen is involved in intramolecular hydrogen bonding, so this will produce acid weakening effect. But we said that hydrogen bonding can affect the acidic strength, it can also affect the dipole moment, and that is intramolecular hydrogen bonding. When there will be intramolecular hydrogen bonding, this bond angle will be less than the normal value. When this bond angle will decrease, the dipole moment will इंक्रीज। सो वी शुड से कि एक वैल्यू नॉर्मल वैल्यू होती है, जो एंगल से निकालेंगे वो जो नॉर्मल वैल्यू आएगी वो कम आएगी, बट जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्ड एंगल घट गया होगा। तो अगर ये बॉन्ड एंगल हम फिजिक्स या मैथ में लेंगे तो इस बॉन्ड एंगल की वैल्यू ज्यादा आएगी, और केमिस्ट्री के हिसाब से ये बॉन्ड एंगल छोटा हो रहा है। हमने कहा कि अगर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उससे बहुत से मॉलिक्यूल इन एसोसिएशन होंगे, जिससे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन इंट्रा। इसलिए हमने कहा था जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड है वो सॉलिड है, जबकि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड लिक्विड है। हमने कहा था कि अगर हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करेंगे तो वीक एसिड हो जाएगा, क्योंकि उसकी हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो हमने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, इसलिए पैरा नाइट्रोफिनोल में there is more stronger hydrogen bonding than in orthonitrophenol. So boiling point of para will be more than ortho.
Next is hydrogen bonding do affect the molar mass. Hydrogen bonding do affect the molar mass. Molar mass normal for acetic acid is 60. Molar mass normal for acetic acid is 60. पर जब उस acetic acid को हम benzene में डालते हैं, that acetic acid form the dimer. Dimer means the molar mass observed will become 120. So this is how hydrogen bonding leads to association, how hydrogen bonding leads to formation of dimer. So acetic acid exists as dimer in benzene because there is intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. It means the molar mass observed will be greater than molar mass normal. It means one thing more, that hydrogen bonding leads to decrease in colligative property. Colligative property depends upon moles. तो हमारे पास 2 मोल एसिटिक एसिड के थे, पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या रह रहे थे? सिंगल मोल की फॉर्म में रह रहे थे. इसका मतलब हुआ 2 मोल का 1 मोल बन गया. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द वन हु डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल तो घट गए भाई, तभी तो मोलर मास बढ़ा है. सो व्हेन ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज ग्रेटर देन नॉर्मल, there is decrease in the colligative property. So hydrogen bonding leads to decrease in colligative property. Increase नहीं कर सकती hydrogen bonding, क्योंकि hydrogen bonding क्या कर सकती है? Association. बहुत से मोल्स को इकट्ठा कर सकती हैं, और अगर बहुत से मोल्स को इकट्ठा किया तो मोल्स घट जाएंगे. मोल्स घट जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी. तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शक नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली रिलेटेड. इज इट ओके अप टू हियर? देन वी डिड दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, if it is intermolecular, will involve long association there is, and then we did that hydrogen bonding result in change in the physical state. वाटर लिक्विड है, H2S गैस है, NH3 लिक्विड है, PH3 गैस है, HF लिक्विड है, HCl गैस है. Because the first member of all these families, they shows hydrogen bonding but not the second member, that's why they are liquid. Hydrogen bonding is directly proportional to viscosity. जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और विस्कोसिटी एंड फ्लो इज इनवर्सली रिलेटेड. का मतलब हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. सो आई शुड से ग्लिसरॉल विल हैव viscosity greater than glycol, who will have greater than water. So viscosity is directly proportional to hydrogen bonding. ठीक हो गया था यहां तक? इसके बाद हमने बात कही कि भाई वही क्वेश्चन कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक और पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक. सो hydrogen bonding led to decrease in acidic strength, hence it is less acidic than para. But this is salicylic acid, where hydrogen bonding led to increase in acidic strength because hydrogen bonding is present in the conjugate base. So उसके लिए हमने एक लाइन लिखी थी, hydrogen bonding leads to decrease in acidic strength if the acidic hydrogen is involved in hydrogen bonding, and if the acidic hydrogen remove करने के बाद
कॉन्जुगेट बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, दैट लीड्स टू increase in acidic strength, as is proved that Ka value of salicylic acid is greater than Ka value of benzoic acid. हम बात कर चुके थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कैसे बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क पड़ा, मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क पड़ा। हम बात कर चुके थे कि वैन डर वाल्स फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डोमिनेट भी कर सकती है, जैसे अमोनिया के केस में किया, बट हमेशा डोमिनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन।